right? So let's we discuss again. Let's we recap the thing again. तो फर्स्ट क्या यूजेस ऑफ हैविंग, तो जहाँ पर पहले हमने सीखा कि एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, सो एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल वी कैन यूज हैविंग. सो प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे, अगर कोई चीज भी कंटिन्यूअस हो और हैविंग एज अ मेन वर्ब, व्हेन हैव इज यूज्ड और हैविंग इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस. सपोज आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी, राइट? That means क्या, eating. Eating के बदले we all know that having can be used. Eating or drinking, right? I am drinking tea. Instead of saying that, we can also say I am having tea, right? तो इन जगह पर जो कि having का इस्तेमाल है, यहाँ पर present participle की तरह इस्तेमाल हो. To form a continuous tense with have. Have के साथ ing मिलके क्या होती है? Continuous tense होती है. So that we have learned. Suppose for example she is having lunch. They were having a discussion. वो अभी discussion कर रहे हैं. These two sentences are in present continuous tense, right? Or that's why participle form of have, that is having, is used here to indicate any ongoing action. So I want you, Pushpita, to create an example with having. Okay. I were having tea in the morning. I were नहीं होगा, I के साथ तो were कभी नहीं यूज होती है. I के क्या, फिर से बोलो. I के साथ was यूज होता है ना. I was, yes. मैं ही भूल गई, sorry. I was having tea in the morning. Yes, I was having tea in the morning. सपोज मैं अभी क्लास ले रहा हूँ और मैं अभी क्लास कर रहा हूँ, सो हैविंग के साथ हम कैसे बोल सकते हैं इस चीज को? I am having my class right now. Yes, I am having an English class right now, right? और I am having my class right now. तो ये हो गया हैविंग का एक इस्तेमाल जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह इस्तेमाल होती है, राइट? तो चलो लेट्स वी सी द सेकंड थिंग हियर. To show an action in progress, कोई भी action progress में हो, उस जगह पर भी हम having का इस्तेमाल करते हैं. तो सेम ही थिंग है, पहले की जैसा ही है. Indicates ongoing action. Suppose the team is having a great season. टीम एक बहुत ही अच्छा सीजन एंजॉय कर रहा है. Having मतलब enjoy कर रहा है. I am having a good English session right now. Yes. I am enjoying a vacation के बदले you can use I am having a vacation right now. I am having a great vacation right now. That means आपका जो vacation है बहुत ही अच्छा चल रहा है. और holiday. In British English we say holiday and in American English we say vacation. इसमें कोई प्रॉब्लम? चलो एक इस जगह पर एक एग्जांपल दो इस चीज की हैविंग में. अभी दिए तो? और एक एग्जांपल एक्सेप्ट दैट एग्जांपल. अच्छा, can't you say this that I am having a great morning today? मैं एक अच्छा मॉर्निंग एंजॉय कर रहा हूँ. I am having a great morning today. Yes. I am having a great morning today. मेरा मॉर्निंग बहुत ही अच्छा जा रहा है. So it indicates an action that is ongoing, right? Like we can say like that कि my parents having come today. No. My parents are coming today. I am having a conversation right now. So in that case you can say. So let's we see the second uses of having here as a gerund. You know about gerund? When var plus ing. Plus ing. Yes. var plus ing मिलके जब क्या करती है, नाउन की तरह काम करती है. Continuous पे आता है. Yes, V1 होनी चाहिए उसमें. V1 plus ing, var plus ing जब किसकी तरह, नाउन की तरह काम करती है. In that case we use, that is actually gerund. तो having कभी जैसे कि joining, walking,
Yes, correct. So sometimes gerund is used as like having, in having as well. तो gerund कभी कभी क्या होती है having की तरह, मतलब having gerund की तरह भी कभी कभी इस्तेमाल होती है. जैसे कि having acts as a noun in a sentence and is often used in the subject or object position. So read just read this and try to understand what it means. Having acts as a noun in sentence and often used in the subject or object position. Yes, we all know the characteristics of noun. Noun can be used as subject, noun can be used as object in a sentence. So having जब noun की तरह, जब gerund बन के noun की तरह काम कर रहा है, तो in that case also having here can be used as subject as well as object, right Pushpita? Yes. तो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है एक्सप्रेसिंग पोजीशन और एक्सपीरियंस. देखो एग्जांपल, आई एंजॉय हैविंग टाइम टू माई सेल्फ, मतलब खुद के साथ समय बिताना मुझे पसंद है. आई एंजॉय हैविंग टाइम टू माई सेल्फ, राइट. तो यहाँ पर जो हैविंग टाइम है ये पूरा क्या हो गया, एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो रही है जो कि है जेरान फ्रेज, राइट. हैविंग, हैव प्लस आईएनजी हैविंग एक जेरान है. तो ये पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो. Okay, you are not able to understand. What are you not able to understand? That whole thing. Concept. Noun, main verb, gerund. Okay. देखो जेरान क्या है, जेरान पहले तुम्हें समझनी होगी जेरान क्या है. मैंने क्या लाशा No, that's I understand what is gerund, but either having acts as a noun in sentence is often used in subject or object position. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पोजीशन. देखो नाउन कैसे इस्तेमाल होती है, कभी कभी सब्जेक्ट की तरह, कभी कभी ऑब्जेक्ट की तरह. जैसे कि आई नो राम, राइट. आई नो राम, तो यहाँ पर आई है सब्जेक्ट और राम है ऑब्जेक्ट. वर्ब के बाद जो बैठता है क्या होती है, वर्ब के बाद जो होती है वो होती है ऑब्जेक्ट, राइट. वो होती है ऑब्जेक्ट और वर्ब के पहले जो होती है वो होती है सब्जेक्ट. ठीक है. यहाँ पर अगर मैं कहूँ आई नो राम, नो इज अ वर्ब, राइट. आई इज अ सब्जेक्ट एंड राम इज अ ऑब्जेक्ट है, राइट. एंड मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि राम इज अ गुड बॉय, तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया. तो कभी कभी नाउन क्या हो सकती है, सब्जेक्ट हो सकती है, कभी कभी नाउन ऑब्जेक्ट हो सकती है. तो वही अगर जेरान नाउन की तरह काम करती है, कभी कभी जेरान सब्जेक्ट भी हो सकती है और समटाइम्स जेरान कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट एज वेल, राइट. I enjoying having time to myself. हाँ. And having a good education. Success. Having a good education is essential for success, right? Okay, having a good education. ये पूरा जो है having a good education, this part totally is a gerund phrase or noun phrase. Noun की तरह काम कर रहा है ना. ये नाउन की मतलब gerund की तरह इस्तेमाल हो रही है और नाउन बन रहा है यहाँ पर, राइट. तो कभी कभी हम ऐसे बोल सकते हैं. Having a good discussion, having a good discussion with the loved ones is very essential for a person. अपने जो अच्छे लोग हैं, अपने जो प्रिय लोग हैं, उनके साथ डिस्कशन करना क्या होती है, हर एक लोगों के लिए अच्छा होती है, राइट. चाहिए, एसेंशियल, जरूरत होती है हर लोगों की. तो यहाँ पर हैविंग नाउन की तरह इस्तेमाल हो रही है. तो कैन यू क्रिएट अनदर एग्जांपल with this one? Having a good teacher is essential for learning. Having a good teacher is essential for learning English. Yes, correct. तो ये हो सकती है. So this is an example of having, where having is used as gerund. Understood? तो सेकंड देखो, इंडिकेटिंग अ कंप्लीटेड एक्शन, परफेक्ट एस्पेक्ट. परफेक्ट की तरह भाई कोई भी काम देखो, अगर कोई भी काम ऐसा हो रहा है कि इंडिकेट कर रहा है कि वो काम कंप्लीट हो चुकी है,
करेक्ट, पढ़ने की कोशिश करो। इंडिकेटिंग कंप्लीटेड एक्शन, कोई काम अगर कंप्लीट हो गई है उस जगह पर इंडिकेट कर रहा है, उस जगह पर भी हम हैविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं परफेक्ट एस्पेक्ट में। तो ये परफेक्ट की तरह इस्तेमाल होगी। जैसे कि आई हैव ऑलरेडी डन द वर्क, सो डन इज अ पास्ट पार्टिसिपल एंड द टोटल सेंटेंस आई हैव जस्ट यूज्ड हियर इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। कोई भी काम अभी अभी खत्म हो चुकी है, कंप्लीटेड एक्शन, करेक्ट। तो used to describe an action that was completed before another action or time, often in combination with before or after. ये पढ़ने की कोशिश करो. Just try to read this one and try to understand whatever it is said. To describe an action that was complete before another action or time, often is combination with before or after. Yes. हाँ सर, ये समझ गए मैं। कुछ एक काम हो रहा था, कर रहा था कोई, जो कंप्लीट हो गया है और उसका बाद वाला कुछ करने का। Used to describe an action that was completed. ऐसा कोई एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुकी है before another action or time, कोई और एक एक्शन शुरू होने से पहले, राइट? जो कि कॉम्बिनेशन में क्या, बिफोर और आफ्टर के कॉम्बिनेशन में बनेगा। हैविंग कंप्लीटेड द टास्क शी टूक अ ब्रेक, मैंने ये पहले ही करा था ना, कोई भी चीज करने के बाद, राइट? कोई भी चीज अगर खत्म हो चुकी है, देखो, राइट, ये पढ़ने की कोशिश करो। हैविंग कंप्लीटेड द टास्क, इट मीन्स ये टास्क खत्म करने के बाद शी टूक अ ब्रेक, उसने ब्रेक लिया। कब ब्रेक लिया? एक काम कंप्लीट होने के बाद। यस, तो ये परफेक्ट का सेंस दे रहा है, परफेक्ट एस्पेक्ट में, जो कि बिफोर आफ्टर वाला सेंस दे रहा है, राइट? देखो यहाँ पर बिफोर तो नहीं है, लेकिन सेंस तो ऐसा ही दे रहा है ना कि बिफोर और आफ्टर, राइट? आफ्टर में यहाँ पर सेंस दे रहा है आफ्टर की। हैविंग कंप्लीटेड द टास्क। मैं अभी यही सोच रही थी, ये तो परफेक्ट टेंस का वो दिखा रहा है। यस, समझे? कोई भी चीज करने के बाद वो किया। सपोज अगर मैं तुमसे कहूँ, इफ आई टेल यू इन हिंदी, खाना खाने के बाद मैं वॉक पर निकली थी कल, तो कैसे बोलोगे? Having completed my, सपोज मान लो रात का खाना खाने के बाद, having completed my dinner, I took a walk. Yes, I took a walk. Or I went for a walk. Yes, I went for a walk. Correct. तो कोई भी काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू करना, राइट? उस जगह पर हम परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखो और एक एग्जांपल, हैविंग लिव्ड अब्रॉड फॉर years, he is fluent in several languages. So ये पढ़ने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या बोला गया है? Just read once this part. Having lived abroad for years, he is fluent in several languages. Having lived abroad for years, कई साल बाहर रहने के वजह से या फिर बाद, he is fluent in several languages, वो अभी fluent है। सपोज किसी का एक्सपीरियंस बता रहा है, मैं इतना दिन वहां पर रहा, तो उस चीज के बाद वो एक कंप्लीट हो गया ना, अब तो वो नहीं रहा है, शायद रह भी रहा है, लेकिन वो काम क्या है, कंप्लीटेड है, वो रह चुका है ना ऑलरेडी। तो इस जगह पर हम क्या करते हैं, तो इस जगह पर हम हैविंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि परफेक्ट का सेंस दे रहा है। अंडरस्टूड पुष्पिता? सपोज अगर मैं तुमसे ये एग्जांपल देने को कहूँ कि दिल्ली में 2 साल रहने के बाद मैं ये कह सकता हूँ दिल्ली का जो कि वेदर है इज नॉट गुड, तो कैसे बोलोगे? Having lived Delhi. Having lived in Delhi. Having lived. Having lived in Delhi. Having lived in Delhi for 2 years, I can tell you Delhi's weather is not good. एक्सपीरियंस बता रहे हो, वही भी काम खत्म हो चुकी है, तो परफेक्ट बना। और एक एग्जांपल दो खुद से बनाकर, ट्राई टू क्रिएट एन एग्जांपल। Having lived Kolkata for 5 years, I can say there is a many political issues in corporate job also.
having worked in Kolkata for several years. Having lived और having stayed, lived भी होगा ना सर, stayed भी तो हो सकता है. Having stayed in Kolkata for several years, I can say corporate politics is the huge problem in Kolkata. Is a huge problem. देखो having stayed in, देखो कोलकाता में रहने के बाद तो तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो तुम्हें बोल देंगे कि having worked in Kolkata. Having worked. Okay. Yes. तो कैसे बोलोगे? Having worked in Kolkata, I can or I must say they have corporate politics so much. Yes. Having worked in Kolkata for several years or for a while, you can use for a while as well. I can say the word politics is there. बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ करके बोल. तो let's we recap the thing again, right? तो gerund की तरह कब इस्तेमाल करते हैं? तो you all know gerund means verb V1 plus ing equal to works as noun, right? तो कब expressing possession or experience, possession और experience बोलने के लिए having a car is increase your cost of living. Yes, increase your cost of living or increase your expenses. Okay. The first example you can say. हाँ बोलो पुष्पिता. पोजीशन की तरह यूज हो रहा है और फर्स्ट पे एक्सपीरियंस की तरह. Yes, having a good education is a possession. I enjoy having time. Having time मतलब कोई चीज होना ना, खुद के लिए टाइम देना, तो it's a kind of possession. तो ये तो हो गया एक. और सेकेंड हम कब इस्तेमाल करते हैं? परफेक्ट एस्पेक्ट में. परफेक्ट एस्पेक्ट, राइट? कोई भी चीज तुम्हारा एक्सपीरियंस हुआ किसी भी चीज में, और कोई भी चीज करने के बाद दूसरा एक काम किए, और कोई भी एक्सपीरियंस होने के बाद दूसरा एक एक्सपीरियंस हुआ, राइट? मैं चाहता हूँ, आई वांट यू टू गिव 2 types of examples, where one example is showing your experience and another example is showing your completion of an action. Combination of action. Completion of action. कोई भी काम complete कर लिया. Having finished her study or education, he or she took a course for her career purpose. Yeah, correct. Perfect. Completion. वो भी completion ही होगा ना, कोई भी चीज करने के बाद you can say something. Having lived in Bangalore for 1 year, I can say Bangalore is good. Yes, very good. तो ये रहा. तो फिर हम आज सीखते हैं ये दोनों ही इस्तेमाल. So the next day we are gonna learn the other uses of having. Okay?